Hello, good morning. Today, in the series of ongoing lectures regarding subject of Shalakatantra, I am going to teach you foreign bodies of thought. So, foreign bodies of fear and nasal foreign bodies topics we have already completed. Uh, Now we are going to do the topic foreign body of thought. All these three topics are in your syllabus, and most of the time one question among these three come into the examination. So listen to the lecture carefully, try to understand it, and if you have any problem, you may ask me anytime. Okay, let's start with the lecture. So the topic of our syllabus, which we are going to do now, is foreign body in the throat. Coming to introduction, coins are the most common foreign body in children. Impacted buttons, batteries is an emergency and require rapid intervention and removal because leaking alkali produces liquefactive necrosis. तो कॉइन्स जो हैं वो सबसे कॉमन फॉरेन बॉडी चिल्ड्रन के लिए है और इम्पैक्टेड बटन बैटरी जो है वो एक एमरजेंसी है जिसको तुरंत टैकल करना जरूरी है क्योंकि जो लीकिंग एल्कली है वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस वो नेक्रोसिस को उत्पन्न कर देता है लिक्विफिकेशन करने के बाद वो अल्काली है जो है बैटरीज की बटन का then कॉमन फॉरेन बॉडीज में नट्स आते हैं सीड्स आते हैं कैरेट्स ग्रेप्स टॉय पार्ट्स बैटरीज पेबल्स buttons or coins. Children under the age of 4 years are in the greatest danger of getting food or an object stuck in the esophagus. तो 4 साल या उससे कम उम्र के बच्चे जो हैं उनमें ये डेंजर ज्यादा रहता है कि वो किसी फूड को या किसी ऑब्जेक्ट को अपने थ्रॉट में इसोफेगस में जो है कैरी कर लें एज अ फॉरेन बॉडी इन केस ऑफ एडल्ट्स फॉरेन बॉडी में भी स्वॉलिड फिश और चिकन बोन तो एडल्ट्स में जो फॉरेन बॉडी है ये फिश हो सकती है या फिर कोई चिकन बोन हो सकता है The sensation of a lump in the throat, unrelated to swelling food or drink, may be globus astricus, which is related to cricopharyngeal spasm and anxiety. तो cricopharyngeal spasm या anxiety के कारण गले में एक लंप यानी कि स्वेलिंग जो फ्लूइड से भरी हो वो बन जाती है जो कि क्राइकोफैरिंजियल स्पाज्म और एंजाइटी से रिलेटेड होती है और ग्लोबस फेस्टिकस जो है कहलाती है The initial work is the same as with any foreign body sensation in the throat. तो इसमें भी इनिशियल वर्कअप जो है ऐसी कंडीशन में भी गले में कोई और फॉरेन बॉडी अगर अटक गई हो तो उसी के जैसे होता है Then coming to clinical features,
choking or gagging when the object is present first inhaled. तो जब सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट की इनहेलेशन होती है तो चोकिंग और गैगिंग जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, कफ होती है, स्टीरॉयड होता है, जिसको फोर्सफुल ब्रीदिंग बोलते हैं आवाज के साथ, देन वीजिंग, कफ, निमोनिया, वॉइस चेंजेस, ये सब ये जो है हो सकते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। तो फिर लोकलाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, अगर कोई फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है तो उसको लोकलाइज्ड कैसे करना है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। Localization of the foreign body sensation precisely above the thyroid cartilage, which imply that a foreign body is present in the hypopharynx. तो thyroid cartilage के above अगर foreign body present है तो वहाँ पे अगर सेंसेशन हो रही है तो इसका मतलब जो है फॉरेन बॉडी हाइपोफेरिंक्स में प्रेजेंट है, यानी कि लैरोफेरिंक्स में प्रेजेंट है। Then patient may vaguely localize the foreign body sensation in the suprasternal notch. पेशेंट को जो है फॉरेन बॉडी की सेंसेशन सुप्रास्टर्नल नॉच में मिलेगी, implying foreign body may be present anywhere in the ECVs, अर्थात कि जो फॉरेन बॉडी है वो इसेफेगस में कहीं प्रेजेंट है। Then foreign body in the tracheobronchial tree, अगर tracheobronchial tree में foreign body present है, it usually stimulates coughing and wheezing. तो tracheobronchial tree में foreign body present होने पे coughing और wheezing होती है। तो हम इसका जो डायग्नोसिस है उस पार्ट पे आते हैं। Percussion and auscultation of patient chest का X-ray, inspection of the oropharynx with tongue depressor, looking for a foreign body or abrasions. Then inspection of hypopharynx with head mirror, paying special attention to the base of the tongue, tonsils and vallicula, where foreign bodies are likely to be lodged. This may be accomplished without topical anesthesia. तो बिना टॉपिकल एनेस्थीसिया के भी हम जो हेड मिरर के द्वारा फॉरेन बॉडी को इंस्पेक्ट कर सकते हैं हाइपोफेरेंस में अगर प्रेजेंट है। उसके लिए हमें टंग, टॉन्सिल और वेलिकुला का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। If the patient gag, anesthesia of the soft palate and posterior pharynx with a spray, that is 10% lidocaine, or by having the patient gargle with viscous diluted xylocaine should be done. अगर पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स होता है तो फिर एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, सॉफ्ट पैलेट और पोस्टीरियर फेरिंग्स में लोकलाइज्ड एनेस्थीसिया, जो कि लाइडोकेन 10% स्प्रे के द्वारा या फिर विस्कस डिल्यूटेड xylocaine सॉल्यूशन के द्वारा दिया जा सकता है। Then foreign bodies present in the base of tongue or the hypopharynx require indirect laryngoscope for visualization. तो अगर फॉरेन बॉडी बेस ऑफ टंग में प्रेजेंट है या हाइपोफेरिंक्स में प्रेजेंट है तो उसके लिए इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोप को यूज किया जाता है देखने के लिए। तो फाइब्रो ऑप्टिक नेसोफेरिंगोस्कोपी इज प्रेफर्ड व्हेन अवेलेबल। तो इसके लिए फाइब्रो ऑप्टिक नेसोफेरिंगोस्कोपी जो है वो बेस्ट मेथड है टू लोकलाइज द फॉरेन बॉडी व्हेन इट इज नॉट विजिबल।
Then coming to treatment. तो ट्रीटमेंट वेरीज विद लोकेशन ऑफ फॉरेन बॉडी। तो जिस प्लेस पे फॉरेन बॉडी है उसके लोकलाइजेशन के बाद ही डिसाइड कर पाते हैं कि कौन से टाइप का ट्रीटमेंट हमें वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। So if the object is in the airway, laryngoscopy and bronchoscopy will be needed for its removal. तो एयर वे में अगर फॉरेन बॉडी है तो उसके लिए हमें laryngoscopy या एसोफेगोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपी करनी पड़ेगी for its removal. This procedure involves passing a rigid scope into the airway and viewing it into viewing to find the object and then using special forceps to remove them. तो लैरिंगोस्कोपी और ब्रोंकोस्कोपी करने के पश्चात फॉरेन बॉडी को लोकलाइज करने के बाद कि उसकी प्रेजेंस कहाँ पे है तो स्पेशल फोर्सेप्स के द्वारा उसको रिमूव किया जाता है। Then if the object is in the esophagoscopy and special tools are used to remove stuck and swallowed item. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो इसोफेगस में प्रेजेंट है तो इसोफेगोस्कोपी परफॉर्म की जाती है और उसके लिए स्पेशल टूल्स को यूज किया जाता है ताकि जो स्टक और स्वॉलन बॉडी है आइटम है या बॉडी है उसको रिमूव किया जा सके। So thank you very much for listening to this lecture. Hope you understood the lecture. Now the foreign bodies of ear, nose and throat we have gone through. ये तीनों हमारे सिलेबस के पार्ट में हैं, इनमें से क्वेश्चन आता है तो इनको स्टडी करना और कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करने के लिए वी आर प्रेजेंट हियर। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो बुक में नहीं है वो कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी कुछ जो रह गए हैं पहले उन्हीं को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।